بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک نیو ولاگ میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ آمنہ بہن پہنچ گئی ہے، میرے خیال سے 20ویں کا ختم کرنا ہے جی ادا۔ جی 20ویں کا ختم کرنا ہے آپ انشاءاللہ کی طرف سے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہاں جی آمین۔ شکریہ، ابھی تیار ہو گئی ہے جانے کے لیے؟ آپ نے جانا ہے ادھر ہی، ابھی دیر ہے آپ کو؟ نہیں وہ ہم نے جانا ہے، پہلے تو زارا کو میں نے لے کے جانا ہے، اس کی پٹی کروا کے لے کے آنی ہے، تو پھر اسے گھر چھوڑ کے نا پھر میں نے ادھر جانا ہے، کیونکہ ہم ابھی جا ہی رہے تھے، بھائی اور بھابھی آ گئے تھے، پھر نا اس لیے نا ہم بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کہا چلو بھائی اور بھابھی نا زارا کا پتہ کرنے آئے نا، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں بھابھی اور کے پاس، پھر ہم نا ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ زارا طبیعت کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے طبیعت؟ ہاں جی بھائی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ وہ تو آپ کے چہرے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ کیا لگا ہوا ہے؟ بھائی یہ وہ کل ڈرپیں لگی تھی نا۔ نہیں، ڈرپیں کیوں لگائی ہیں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، ڈرپوں کا دانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھائی وہ زخم خشک کرنے کے لیے انہوں نے نا ڈرپیں لگائی تھی، اس میں ٹیکے مکس کر کے نا دردوں کے لیے اور نا زخم خشک کرنے کے لیے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ، نہیں یہ مجھے بڑے سوال جواب دینے پڑتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میرا پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں نے کہا میں بتانے سے بہتر یہ ہے کہ بھئی آپ خود بتا دو۔ ہاں جی بھائی ہم نے بھی کل ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ہم تو چیک اپ کے لیے آئے تھے، تو وہ ڈاکٹر نے کل صفائی وغیرہ کی تھی نا، تو وہ سر نے کہا اس کے نا ڈرپیں وغیرہ لگوا لیں آپ، زخم بھی خشک ہو جائے گا اور نا اس کو نا درد وغیرہ نہیں ہوگی۔ بابا بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے۔ آمنہ خیریت سے پہنچ گئی ہو؟ ہاں جی شکر اللہ کا، بچے سارے گھر ہی ہیں، روزے رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے۔ ادھر پیچھے ہیں؟ ہاں جی وہ ادھر ہی ہیں، بس میں چھوٹے بیٹے کو لے کر آئی ہوں اپنے نا، چلو شام اللہ۔ کو چلا جائیں گے، افطاری کر کے شانہ سے چلے جائیں گے۔ حیدر علی اپنی مما کو لے کے جا رہا ہے، کہاں پہ جا رہے ہیں؟ رقیہ بہن کی طرف جا ہاں رہے جی ہیں؟ آپ رقیہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بچے پہلے چلے گئے ہیں، فضا بیٹی ادھر ہی ہے، جب زارا جائے گی نا پھر یہ حیدر آئے گا بائک لے کے، تو پھر اس کے ساتھ بائک پہ جائیں گے، وہ 4 بجے آئیں گے، میں نہ جا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ادھر نا میری ضرورت پڑے گی پھر۔ ہاں جی آپ جاؤ، میں بھی موبائل پہ کچھ کام کر رہا ہوں، میری مصروفیت ہے، چلو آپ حیدر کے ساتھ چلی جاؤ، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ معصوم فاطمہ کو بھی لے کے جا رہی ہوں، یہ رہ گئی تھی بقایا، بچے چلے گئے ہیں۔ چلیں جاؤ خیریت سے، اللہ پاک خیریت سے لے کے جب میں بھی آتا ہوں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن۔ میرا مشن ہے جو بٹھے کی غریب فیملی ہیں، جن تک راشن نہیں پہنچ پاتا، یہ بیچارے روکھی روٹی سے روزہ رکھتے ہیں اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اتنا وسائل نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ ماشاءاللہ سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر مشہور چیز ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، جیسے کہ کھجور ہوتی ہے، فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس فقط جو ہے نا صرف وہی چیز ہوتی ہے جو بیچارے یہ بناتے ہیں، اضافی چیز نہیں لے پاتے، کیونکہ جو مزدوری کرتے ہیں اس سے بڑی مشکل سے جو ہے چولہا جلتا ہے، نہ ہی بیچاری اپنے عید پہ بچوں کو کپڑے وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں، بہت ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اس بہن کے لیے جی راشن کا اہتمام ہو گیا ہے۔ میری پیاری آپ یو کے میں رہتی ہیں، ان کی طرف سے اس بہن کو میں نے راشن دے دیا ہے۔ باجی دعا کر دو، آپ ہی کے لیے یو کے میں رہتی ہیں۔ اللہ انہوں بہت دے، اللہ دے بچیاں دی زندگی کرے، اللہ دے شوہر وچ کاروبار وچ برکت پاوے، جنہیں غریباں نوں دتا ہے۔ آمین۔ ایک اور بٹھے کی حقدار غریب مستحق فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ میرا مشن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو اللہ کی راہ پر جو دینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو میں راشن لے کر ان کے پاس پہنچا ہوں، یہ ان کا حق بنتا ہے، انہی تک ہم نے پہنچانا ہے۔ میرا مشن بھی یہی ہے اور شروع دن سے میں کوشش کرتا ہوں کہ حقدار کو ڈھونڈا جائے، مستحق فیملی کو ڈھونڈا جائے۔ نہایت غریب فیملی ہے، بٹھے پہ مزدوری کرتی ہے، یہ تو بیچارے گھر بھی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اپنے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر پہ قرضہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، دکھ سکھ میں پیسہ لے لیتے ہیں، پھر قرضہ اترتا نہیں ہے، بارشیں آ جاتی ہیں ان کے اوپر اور قرضہ چڑھ جاتا ہے، بارشیں ہونے کی وجہ سے کام بند ہو جاتا ہے۔ میری بہت ہی پیاری آپ رہتی ہیں یو کے میں، آپ کی طرف سے حقدار مستحق غریب فیملی میں جو بٹھے پہ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا ہے۔ اور آپ ہی نے مجھے نام لینے سے منع کیا ہے کہ صدیق بھائی ہمارا آپ نے نام نہیں ایڈ کرنا، بس آپ دے دیجئے گا، ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے، یقین ہے۔ لیکن میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ آج کے جتنا یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ میری پیاری آپی اور یہ میری جو پیاری آپی ہیں حیدر علی کی مما ہیں، بڑی لاڈ کرتی ہیں میرے بیٹے حیدر سے، اور ویسے تو الحمدللہ پوری فیملی سے پیار کرتی ہیں۔ حیدر علی جو ہے میری پیاری آپی کا پیارا پیارا بیٹا بنا ہوا ہے، بہت زیادہ لاڈ کرتی ہیں۔ یہ نشانی میں ویڈیو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپی کو پتہ چل جائے کہ یہ راشن جو ہے ہماری طرف سے صدیق بھائی نے شروع کیا ہوا ہے۔ باجی کے لیے دعا کر دو، آپی راشن دیا ہے روزے رکھنے کے لیے۔ آمین ثم آمین، اللہ ان کو بہت دے، صحت مند تندرست رکھے، آمین جو ہماری مدد کرتے ہیں بہت بہت اللہ ان کو دے، آمین۔ بٹھے کی ایک اور حقدار مستحق
बाबा जी के पास जी मैं पहुंच गया हूं राशन लेकर। ये उम्र इंसान की होती है इबादत करने की। बारिश हो गई है, एक उम्र का हिस्सा है वो गुजार लिया है, लेकिन फिर भी पेट की खातिर करना पड़ता है, गुजारा नहीं होता। जब तक करेंगे नहीं तो फिर देगा कौन। ये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ रही है, इसको बोलते हैं हम गैब की मदद। हाय सब दुआ कर दें, आप ही की तरफ से ये राशन दिया है। अल्लाह में आप यासमीन को तरक्की याफ्ता बनाए, अल्लाह में इसको हज उम्र कराए। आमीन इन्होंने हमारे बच्चों के लिए रिस्क भेजा है, आमीन राशन भेजा है, अल्लाह में इनको कामयाब करे आमीन। खुश हैं जी इंशाअल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह पाक भला करे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, करें आप रोज़ी करें, करेंगे नहीं तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा। रख दो जी आराम से, यहाँ पे रख दो। एक और हकदार भाई के पास पहुँचा हूँ, और पेट पालना कितना मुश्किल होता है। और ये वाला जो काम है मट्टी का, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इस काम से गुजरा हुआ हूँ, मैंने काम ये किया हुआ है। जिस बंदे ने काम किया हुआ होता है उसको पता होता है कि ये काम कितना टफ है। सुबह आते हैं, बिस्तर ठंडा बिस्तर भी छोड़ के जाना पड़ता है, गर्मी में भी आना पड़ता है। गर्मी में आते हैं तो गर्मी लगती है, सर्दी में आते हैं तो सर्दी लगती है। क्या करें बस, लेकिन पेट पालने के लिए करना तो पड़ता है। जो इंसान के नसीब में मुकद्दर में जिस चीज़ की रोज़ी लिखी हुई होती है वो तो इंसान को मिलनी होती है। अब देखें इस भाई ने ये काम करना है तो इसको यहाँ से रोज़ी मिलनी है। जब तक अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में यहाँ से रोज़ी लिखी हुई थी, मैं कमा रहा था, बच्चे का पेट पाल रहा था, अल्लाह पाक ने मेरी बाजू पकड़ी। अल्लाह पाक का लाख एहसान है। अमानत लेके बाजी की पहुँचा हूँ भाई के पास। दुआ कर दो बाजी के लिए। अल्लाह पाक उन सिस्टर बहन को अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमानत रखे। आमीन। अल्लाह पाक किसी किस्म की कोई परेशानी ना देवे। आमीन। अल्लाह पाक वो बहन दे रिज़्क माल कारोबार च बरकत अता। आमीन। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। आमीन। अमानत रखे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। अभी जी मैं भाभी जी के पास पहुंचा हूं। यहाँ पे जी भाई सईद काम कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि ये भाई रफ़ीक के भाई हैं, मतलब ये है कि फ़ातिमा आपी के देवर लगते हैं। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हकदार तक हक पहुँचाया जा रहा है। हमने रिश्तेदारी नहीं देखनी, संगत साथ नहीं देखनी, हमने देखना है कि हकदार कौन है जिसको इस राशन की ज़रूरत है और उसको ये राशन लगता भी हो। दुआ कर दो आप ही के लिए। अल्लाह पाक हमारी बाजी को बहुत ज्यादा दे, सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह पाक उनके कारोबार में, रिज्क में हमेशा बरकत डाले। अल्लाह पाक उनका दिया मंजूर कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जी आपके साथ इन फैमिली की वीडियो शेयर की थी और बताया था कि ये भाई भी काफ़ी बीमार है, वो बाजी भी काफ़ी बीमार है। ये इनकी वालदा मुहतरमा है, भट्ठे पे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। हालात की वजह से बड़े परेशान है। जब घर में गरीब बंदे की परेशानी आ जाती है, दुख तकलीफ़ आ जाती है, यकीन करें गरीब बंदे के एक तो घर में गुर्बत होती है, दूसरा जब तकलीफ़ आ जाती है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, गरीब फैमिली जाए तो कहाँ जाए, अल्लाह के आगे फरियाद कर देती हैं। ये चैनल मैंने कितने साल हो गए हैं मैं खिदमत इनकी कर रहा हूँ, गरीब बंदों की। अल्लाह की जो बनाई हुई गरीब फैमिली है, इनकी खिदमत में दिन रात एक कर देता हूँ, और इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो आप पे जाता है कि मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ, आप कहीं ना कहीं से अल्लाह का नेक बंदा आके उसके दुख तकलीफ़ को समझता है, उनके लिए मदद भेज देता है। अल्लाह पाक फरिश्ते बना के आपको भेज देता है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई यूके में रहते हैं, अरशद भाई, आपकी तरफ से इस भाई के लिए, और वो बाजी बीमार है काफ़ी, इस भाई का छाती का मसला है। इंशाल्लाह ताला ये कुछ पैसे आ गए हैं, अम्मा जी जो है दवाई वगैरह लेगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना है, इनके हवाले जी मैं कर देता हूँ। 28,500 रुपये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है, अल्लाह पाक ने मदद की है। अपने अरशद बेटे के लिए माँ जी दुआ कर दो। अल्लाह ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆਂ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक तुहाडी दुआ साडे हक च कबूल करे, मेरे भाई दे हक च दुआ कबूल करे। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਕ ਦੇਵੇ, ਇੰਨਾ ਕ ਦੇਵੇ, ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। अल्लाह पाक साडे भाई ने भाई बहुता देवे, जिन्हें साडी इमदाद की, अल्लाह पाक उनकी बहुत इमदाद करे, अल्लाह उनके बच्चों को लंबी जिंदगी दे। आमीन। अल्लाह पाक इन्ना देवे कि देंदा देंदा लोकां थके ना। आमीन। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ। भाई जान वास्ते मैं तो दुआ ही करना, अल्लाह इन्ना क देवे भी वो किस्म दिन थके ना, आमीन। ते उनकी जिंदगी मेरी भी जिंदगी में लग रही है, अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र देवे। दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, रूम के अंदर आया हुआ हूँ। इस बाजी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी पिछले दिनों। अल्लाह पाक ने इसको साहिब औलाद किया है, और किस माँ की ख्वाहिश होती है, किस बहन की ख्वाहिश होती है
जो अल्लाह पाक ने उसका जब घर बना देता है। किस बहन की ख्वाहिश नहीं होती, किस माँ की ख्वाहिश नहीं होती कि भाई अल्लाह पाक मुझे औलाद ना दे। अल्लाह पाक ने इसको साहिब औलाद किया। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी और इसके पेट में भी काफ़ी दर्द रहता था, काफ़ी ये बेचारी परेशान थी। अरशद भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप रहते हैं इंग्लैंड में, यूके में रहते हैं। इस बहन को अल्लाह पाक इसकी मुश्किलात को आसान फरमाए। 28,500 रुपये अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। दुआ में याद रखना, मुझे भी, भाई अरशद को भी दुआओं में याद रखना। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵੇ। आमीन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਦਵਾਈ। ਤੇ अरशद भाई दा अल्लाह भला करे जिन्हें सानू दिता। माह रमज़ान का पहला अशरा शुरू हो चुका है और अल्लाह के घरों में हमें बेतहाशा हैंड पंप की ज़रूरत है। अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के हैंड पंप लगवाएं, नलके लगवाएं, क्योंकि नमाजी आता है, गाँव के विलेज के बच्चे आते हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो पानी की बड़ी तंगी होती है। बिजली जब चली जाती है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्लाह के घर का हैंड पंप आ गया था। बहुत ही प्यारी हमारे भाई हैं, आपकी तरफ से इस अल्लाह के घर में हैंड पंप का काम जी शुरू करवा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे मिस्त्री तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छे वाले पाइप लेकर आए हैं, अच्छे वाली बड़ी फुल मशीन लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जी बड़ा बोर किया जा रहा है। हमारी बोके का काम मुकम्मल होने के बाद जी यहाँ पे भाई साहब जो है पाइप को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जी फिल करना पड़ता है, मुकम्मल इसको फिट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे पाइप जुड़ने के बाद अब जी ज़मीन के अंदर पाइप को डाला जा रहा है, ताकि हमारा हैंड पंप लगाया जा सके। जो बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं उनको पानी की बड़ी तंगी होती है, ताज़ा पानी नहीं मिल पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बोके लगाने के बाद अब पाइपों को अंदर डाला जा रहा है, नीचे ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, ताकि हमारा पानी का अच्छी तरह से सेटअप बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुकम्मल बोकी साफ़ सुथरी होने के बाद, पैप डलने के बाद जी अब आपको मैं दिखाता हूँ माशाल्लाह से इतनी बड़ी ये मशीन है जो ज़मीन के अंदर जाएगी। जब ये हमारी मुकम्मल फिटिंग हो जाएगी फिर जाके ये पानी देगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जी हमारी मशीन ने पानी देना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ठाठे मारता जी हमारी मशीन में से पानी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से हमारा हैंड पंप हो चुका है मुकम्मल तैयार, खुरा भी लग चुका है। अब जी आपको मैं दिखा देता हूँ माशाल्लाह से हमारा हैंड पंप ठाठे मारता पानी दे रहा है। अल्लाह पाक इस पानी का स्वाब मेरे प्यारे भाई ने अल्लाह के घर में ये हैंड पंप लगाया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। आपको मैं प्लेट भी दिखा देता हूँ। इस अल्लाह के घर में जो प्लेट लगी है कनीज़ फातिमा आपी की तरफ से ये प्लेट लगी है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने ये हैंड पंप लगवाया है, प्यारी आपी ने लगवाया है। अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। कारी साहब से दुआ भी करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे मस्जिद वास्ते इंतजाम किए, अल्लाह ताला उन्हें वालिदा वालिद को जन्नत जगह दे, अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करे। वालिद गाँव जितना ही है तो लोग मस्जिद वास्ते खिदमत करें तौफीक देते रहे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर मुसीबत में अल्लाह ताला उनको मान। मेरी टीम एक और अल्लाह के घर में पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा मदरसा है, यहाँ पे कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, हाफिज़ बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, आलिम बनते हैं। यही बच्चे जब आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, अपने वालदैन का, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब जी पट्टे वाली जो बोकी है उसकी बारी शुरू हो गई है। तेज़ी के साथ मेरी टीम के मेंबर काम को मुकम्मल कर रहे हैं। बोकी लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा कि आपको पता है कि काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अब जी बारी आ गई है, पैपों को जोड़ने की बारी आ गई है। ये जलाकर थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग की जाती है, पैप की लेंथ को सीधा किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरे पैप को इसके अंदर घुसा के बराबर कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी बोकी मुकम्मल होने के बाद जी बारी आ गई है पाइप को नीचे उतारने की। अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छे वाले आदम जी वाले पाइप लेकर आते हैं। अब हमारी मशीन भी माशाल्लाह लग चुकी है। इस अल्लाह के घर में छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। हैंड पंप जी हमारा लग चुका है। पहले चलता हूँ मैं आपको हैंड पंप का पानी चेक करवा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठाठे मारता हमारा हैंड पंप पानी दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करूँगा मेरा प्यारा भाई जब ये वीडियो देखेगा खुश होगा कि माशाल्लाह से हैंड पंप जो है ज़बरदस्त हमारा लग गया है। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए हैं। सबसे पहले जी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई इम्तियाज़ भाई की तरफ से ये हैंड पंप लग गया है। मस्जिद मुदस्से में अल्हम्दुलिल्लाह जी हैंड पंप लग गया है। दुआ करवा लेते हैं।
फरजान दर्जा कामल बख्श फरमा जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आइए मैं आपको दावत दे रहा हूँ, अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवाएं। हवाला नंबर 56 बनता है। इस अल्लाह के घर में मस्जिद में बहुत तादाद में, कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। इस अल्लाह के घर में हैंड पंप मौजूद नहीं है। पानी के लिए बड़ी तंगी होती है, परेशानी होती है। जब बिजली चली जाती है, मोटर बंद हो जाती है तो बहुत ही परेशानी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। यहाँ पे बच्चे अलग से कुरान पाक बहुत कसीर तादाद में पढ़ते हैं। साथ में जो विलेज के नमाजी आते हैं, नमाजियों को, बच्चों को ताज़े पानी के लिए बड़ी परेशानी तंगी होती है। अंदर आपको लिए चलता हूँ, आप देख सकते हैं कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, हाफिज़ बन रहे हैं, दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। यही बच्चे हमारे आने वाले वक्त का मुस्तकबिल हैं। काफ़ी ये बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। इस मस्जिद में जी कालीन की भी अच्छा ज़रूरत है। कारी साहब ख़ुद भी बताएंगे। आप देख सकते हैं कि कालीन नहीं है इस मस्जिद में। इस अल्लाह के घर में हमें हैंड पंप की भी ज़रूरत है और साथ में बहुत बड़ी कालीन की भी ज़रूरत है। अल्लाह का प्यारा, कोई मेरा प्यारा भाई इस अल्लाह के घर में ज़रूर कालीन भी लगवाए, हैंड पंप भी लगवाए। जामिया मस्जिद अली मुर्तज़ा जहाँ कलीना कम इम्तिहान एज हुई कलीन दे असां नमाज़ पढ़ते हैं। तरावी की नमाज़ थींदी है, जुम्मे की नमाज़ थींदी है, लोगों को मुशक्क़त थींदी है, परेशानी थींदी है। असां रिक्वेस्ट करें तो सब कोई कलीना मिली होगा। इमाम साहब की आपने अपील सुन ली है। अल्लाह के घर में पहुंचा हूं। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 57। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की ज़रूरत है। माह रमज़ान की बरकतें समेट लें। माह रमज़ान का महीना जी शुरू हो चुका है। कुछ ही टाइम के बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। पानी की अशद ज़रूरत होती है हर जगह पर। गर्मियों में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद का जी अंदर आ चुके हैं। इस मस्जिद के लिए जी मैं अपील करता हूँ, कालीन कोई अल्लाह का प्यारा बहन भाई कलीन ऐड करवाना चाहे तो आप कलीन भी ऐड करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है इस अल्लाह के घर के लिए, हमें हैंड पंप की ज़रूरत है, कालीन की ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। पहुंच गए हैं एक और अल्लाह के घर में। इस अल्लाह के घर के लिए भी हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये गांव की मस्जिद है। मेन रोड के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 58 बनता है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इस मस्जिद में हैंड पंप नज़र नहीं आ रहा आपको। अंदर आपको लिए चलता हूँ। अंदर से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये मस्जिद छोटी सी बनी हुई है, बहुत ही प्यारी। हर मस्जिद के अंदर तकरीबन 2 टाइम बच्चे जो है कुरान पाक पढ़ते हैं। सुबह के टाइम भी बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। जब शाम हो जाती है फिर शाम के टाइम भी असर के बाद नशिस्त लगती है, बच्चे आते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अंदर माशाल्लाह से मस्जिद बिल्कुल ओके है। हमें इस अल्लाह के घर के लिए हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। पानी का बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है। बच्चे आएंगे, वज़ू करेंगे, नमाज अदा करेंगे, इबादत करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी टीम और मैं कोशिश कर रहे हैं, दिन रात अल्लाह के घरों का विज़िट किया जा रहा है और आपके सामने अल्लाह के घर लेकर आते हैं जहाँ पे हमें हैंड पंप की ज़रूरत होती है। फिर हम आपसे अपील करते हैं कि इस अल्लाह के घर में हैंड पंप ज़रूर लगवाएं। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह के घर में जी पहुँच गए हैं। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। इस मस्जिद में पहुँच गए हैं। हवाला नंबर 50 और 9 59 हवाला नंबर बनता है। आप देख सकते हैं एक भाई नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है जिस मस्जिद में हैंड पंप की कमी होगी, पानी की कमी होगी, वो मस्जिदें आबाद कम होंगी। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगाया जा सके। आप देख सकते हैं अंदर बच्चों के नशिस्त लगा कर बैठे हैं, बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह से। अंदर मस्जिद में कालीन भी बिछी हुई है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये अल्लाह का घर बना हुआ है। अल्लाह पाक उन प्यारे बहन भाइयों को बहुत देता है जो अल्लाह की राह पर खर्च करते हैं। पानी की बहुत बड़ी फजीलत है। पानी की कदर पूछना हो तो रोज़ेदार से पूछें कि पानी की कितनी कदर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहनत के साथ जी आपके सामने अल्लाह का घर लेकर आते हैं। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। और अल्लाह के घर में जी पहुँच गए हैं। इस अल्लाह के घर के लिए भी हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है।
माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है। हवाला नंबर इस मस्जिद का 60 बनता है। आप हवाला नंबर बता के भी अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवा सकती हैं। मेरा हवाला नंबर बताने का मकसद भी यही होता है ताकि आपको कोई मस्जिद पसंद आ रही हो, आप अपने पसंद से मस्जिद में हैंड पंप लगवाना चाहें तो हवाला नंबर ऊपर लिखा हुआ भी होता है। साथ में मैं वॉइस में भी बता देता हूं कि आपको इस मस्जिद में अगर हैंड पंप लगवाना चाहते हैं तो आप हवाला नंबर याद रख के मुझसे आप अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवा सकते हैं। अंदर से देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इस मस्जिद का काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं अंदर। बहुत प्यारी गांव की ये मस्जिद है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अच्छा ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, तबीयत से ठीक है जी? ठीक ठाक। पकड़ी है देख? हाँ जी, चिकन वगैरह भी डाला मसाले में। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हैं बनाने वाले? जी भाई। तबीयत कैसी है? ठीक है, अली हसन सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? रोज़ा है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा है आज? मेरा भी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे भी रोज़ा है। रोज़ा है मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की तैयारी हो रही है? हाँ जी, नमाज पढ़ने लगी है। वजू करके आई हूँ तो मैंने कहा पहले नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद काम तो माशाल्लाह सारा हमने कर दिया है। भाभी शुक्रिया। और मैं भी बेटा जी पकौड़े बना रही हैं, बाकी सारा काम हो गया है। वो आप चटाई लेके आए भाई? चिटाई आ गई है। चलो ठीक। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम मेरी प्यारी अम्मी। ठीक है अम्मी जी? तबीयत ठीक है? आपके प्यारे प्यारे हाथ किधर हैं? ठीक है अम्मी जी। आप सब देखने वाले प्यारे बहन भाइयों ने बताना है कि वाकई ही सच्ची में मैं मजाक तो नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ कि माँ की जब बंदा प्यार से चुम्मी लेता है तो कितनी मीठी लगती है। हाँ जी। जी अम्मी जी? फल फ्रूट कटे हुए हैं। अच्छा जी, मैं देख लेता हूँ जी। आमना की तरफ बाद में आता हूँ। फ्रूट वगैरह जी तैयार हो गए हैं अफ्तारी के लिए। सेब भी काट लिए हैं माशाल्लाह, और खरबूजे, सेब, केले और गंडेरियाँ वगैरह माशाल्लाह। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। नमाज कर लिया अदा? जी हाँ जी, असर की नमाज पढ़ लिया। आप कुछ कह रही थी मुझे? मैं कहती हूँ फल कटा हुआ है। नहीं, आप ये कह रही थी भाई सदीक आ गए हो? हाँ जी, मैं अम्मी से बात कर रहा था। हाँ जी, मैं ये कहती भाई आप आ गए हो? आपके सामने ही हूँ। हाँ जी। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमारे सामने ही रखे। आमीन। ज़ारा बैठ जाओ आराम से। मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ जी बैठ जाओ। दिया के कमरे में, तो ना मैं उधर बैठने जा रही हूँ। शुक्रिया। कारी साहब आ गए हैं। ख़त्म शरीफ अदा करना है। पकोड़े वगैरह आप प्लेट में निकाल के दे दो ताकि ख़त्म शरीफ हो जाए। कारी साहब ने मस्जिद में जाके रोज़ा खुलवाना होता है और मस्जिद भी खोलनी होती है। मुझे भाभी जान को आप भाभी जान देंगी आपको, तो भाभी जान ने वैसे भी फ्रूट के ना सब प्लेटें वगैरह कारी साहब के लिए बना के रखी हुई है। सिर्फ पकोड़े रह गए हैं, वो भाभी जान को भाभी जान आपको न दे देंगी। साथ में महविश बेटी भी हेल्प करवा रही है। शुक्रिया के साथ मिलकर पकोड़े, ये पकोड़े पता नहीं कौन से बोले जाते हैं महविश? पालक वाले पकोड़े? हाँ जी, पालक। कारी साहब के लिए मेरे ख्याल से आमना बहन आ गई है पकोड़े डालने के लिए प्लेट में। जी हाँ जी, ख़त्म के लिए यानी कि पकोड़े रख रहे हैं ना, इस वजह से अभी बस वो रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं। रोटी आएगी तो फिर तंदूर पे लगवाई है रोटी? तंदूर से रोटी। सालन बन गया? सालन तो उधर देख बन रही है। अच्छा। ये पकड़ो, रुकैया बहन ने ये पकड़ाई हैं। समोसे वगैरह भी पकानी है। मेरी नमाज बीच में रही जा रही है, मैं जा रहा था फिर रुक गया हूँ। कुछ टाइम के लिए बाय रखो, इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। बंद करके ना गिरा लगा के पानी में रख दो 2 मिनट के लिए। ये काम करो। नहीं आएंगे, पानी ना जाए ना अंदर, गिरा लगा के रखना ना, फुल ना करना ना, इतने देर पानी हो। इतने एक काम कर सकते हो, अगर इसको सारे को डाल दो इस तरह शापर निकल आवा, ये तो बड़े जमीन खुल जाएंगे ये बाद में। खुल तो जाएंगे लेकिन जो घी हमारे ऊपर आएगा। नहीं, आराम से डालना है ना इसके अंदर कढ़ाई में। जैसे जैसे ये पानी वो खुलेगा ना तो वो ये अली हसन यार आप कर देख, जैसे बोटियों का अलग अलग करता है ना इसकी जो है ना। क्या कहा है? मैंने कहा है आधा शापर पानी में रहना चाहिए, फुल ना करना शापर, यानी कि ऊपर पानी ना आना जाए शापर के, फिर खुल जाएगा ना पानी वो बर्फ। बिस्मिल्लाह। चलो ठीक है, सही है यार। ये देखो एक एक हो नहीं गई है, खुल जाएगी। हो जाएगा, कोई नहीं। इसे यही रखते हैं, यही पे रखते हैं, हवा लगी इसे लहद हो जाएगी। चलो बस आप लगे रहो, मैं तो जा रहा हूँ नमाज पढ़ लूँ, मेरी नमाज की देर हो रही है। बाबा जी आप तो कारी साहब ला ले। काशा बुला रहे हैं सर जी, मैं आ रहा हूँ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آمین. خاص کر حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور کی آل پاک، حضور کی اولاد پاک، تمام امہات المؤمنین، تمام ازواج مطہرات، اپنی شہلہ کے والد محترم بشیر بٹ صاحب کی الہ العالمین روح کو اس کا ثواب پہنچا، خالصتاً الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عصر کی نماز یہ ادا کر لی ہے. یہاں پہ جو افطاری کی سیٹنگ کی جا رہی ہے. جتنا بھی فروٹ کاٹا ہے سارے کے اوپر جو ہے ہم رکھیں گے اوپر رومال تاکہ مکھیاں وغیرہ نہ بیٹھے. علی حسن اس کے اوپر رومال ڈھکو بابو. مکھیاں بہت ہیں نا ہمارے ادھر گاؤں کے اندر. سموسے نکالتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے، گرم ہے نا ابھی ایسے شاپ رکھے. جب رہ جائیں گے نا 5-7 منٹ اس ٹائم نکال لیجئے گا، ایسے ہی رہنے دو. چٹنی بھی پھر بعد میں نکال لیں گے. چٹنی ابھی نکال لیں، چٹنی نکالنے میں ٹائم. چٹنی ڈونگے میں نکال کے رکھ دو، پھر کٹوریوں میں ڈال کے ایسے آگے دے دیں گے. میرا خیال سے یہ جو سموسے منگوائے ہیں اس کے ساتھ یہ ساری چٹنی آئی ہے. نیچے گری تو نہیں؟ میرا ہاتھ لگ گیا. تھوڑی سی گری ہے، کوئی بات نہیں، بچت ہو گئی ہے. بچت ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. پکوڑے جو گھر پہ بنائے جا رہے ہیں، محوش اور شکریہ جو بنا رہی ہے وہ پکوڑے تیار ہو کر یہ بھی آ گئی ہیں ہمارے افطاری والے دسترخوان پر. چھوٹی چھوٹی کٹوریاں اس طرح سے سیٹنگ کر رہی ہیں. یہ کھل گئی ہے نا، میں کہہ رہا تھا نا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. دیکھو کھل گئی ہے نا آخر. ہاں جی یہ علی حسن نے کھولی ہے. وزنی ہے کافی. ہاں جی ایک ہاتھ سے نہیں پکڑا جا رہا نا. دو مجھے دو، میں رکھ دیتا ہوں. بس آخری پور رہ گیا باقی. یہ نا جو یہ پکوڑے بنا رہے ہیں نا یہ بھائی عمران کے ہے نا. بھائی عمران نا وہ پالک والے نہیں نا کھاتے، بھائی کا نا گلا خراب ہو جاتا ہے. یہ بنا پالک والے ہیں. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو بیٹے؟ پہنچ گئے ہو؟ ہاں جی ہم تو کب کے آئے ہیں. اور آپ کی مما کدھر ہے؟ امی اندر ہے. اچھا میں تو ملا نہیں نا، کیونکہ میں آیا تھا اور سر پہ ہاتھ رکیا کے رکھ، پھر میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا. اب آیا ہوں تو یہاں پہ دسترخوان وغیرہ ساری سیٹنگ ہو رہی ہے. یہ کیا چیز؟ یہ سارے گرا دیا محوش. کس نے گرائی ہے؟ یہ آمنہ نے، ہمنہ نے گرائی ہے. یہ چٹنی ہے کیا چیز ہے؟ ہری ہری. ہاں جی یہ چٹنی بنا رہے تھے نا رائتا، گرینڈ کرے تھے. اوئے ہوئے اتنی خوشبو آئی ہے، دماغ پہ چڑھ گئی ہے. دہی آئی پڑی ہے. چلیں ٹھیک ہے بناؤ، ٹائم تو اوور ہو رہا ہے. کلین بھی آ گئی ہے، اینڈ ٹائم موقع پر پہنچی ہے کلین، کیونکہ مرد حضرات اور خواتین ساری مکس ہو جاتی ہیں تو سارے ہم فیملی ممبر ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کلین کا ہونا یہ ٹھیک تھا، زبردست ہو گیا. علی لے کر آیا یہ بھی. آمنہ ایک ہے کلین، 2 ہیں. چلو ٹھیک ہے 7 اٹیچ کر دو اس کے. دوسرے والے یہاں بچھا دیتے ہیں، بس یہ صحیح ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے والا ٹائم نہ ہو جائے. کل بھی آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے، این موقع پہ آپ کے جا کے ساری ٹکیں وغیرہ. آج تو ٹکیں بھی نہیں ہیں آپ کے ہاتھ کی. ٹکیں بھی نہیں ہے اور پکوڑے تو ہیں نا میرے ہاتھ کے، لیکن نا پکوڑوں میں میرا ذائقہ ہاتھوں کا نہیں ہے، صرف بنانے کا ذائقہ ہے. جو مٹیریل وغیرہ ہے نا وہ سب بھابھی نے بنا کے دیا، صرف میں نے بنائے ہیں. اور یہ اب جو سموسے رول ہے نا یہ تل رہی ہوں. سموسے رول وغیرہ جی پکانا شروع کر دیے ہیں. یہاں پہ جی رول جو ہم نے علیحدہ کیے ہیں ہمارے سارے، یہ ابھی تھوڑی دیر تک بن جائیں گے انشاءاللہ. افطاری تک ہمارا یہ سارا پکوڑا اور پکوڑا تو بن گیا، سوری سموسا اور رول تیار ہو جائے ہاں گا. جی اگر اس میں نا برف بہت ہے نا یہ نا ٹائم بہت زیادہ لے رہا ہے، نہیں تو اب تک نا یہ فرائی ہو جانے تھے. گڑبڑیشن ہو گئی ہے میرے خیال سے. چٹنی کا جو ڈالا ہے دھنیا موٹا ہے. ہاں جی موٹی ہے، اس وجہ سے نا یہ مشین چلا رہے ہیں. یہ کیا بولتے ہیں اس مشین کا کیا نام ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا ہے یہ سٹیک نہیں ہے، وہ بلینڈر کہتے ہیں مجھے. بلینڈر. ہاں جی بلینڈر. سوچ کے یاد آ رہا ہے. آواز بالکل بھی نہیں ہے اس کا، یہ مزہ ہے، شور شرابہ نہیں. میں کہا آواز بھی نہیں، ہر چیز بھی منٹ میں تیار ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی شوکت بھائی لے کے آئے تھے نا، اللہ پاک ہمارے شوکت بھائی کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. یہ والی مشین اور وہ دوسری پتہ نہیں وہ جو بناتی ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، یاد کر کے پھر بتاتے ہیں. سینڈوچ مشین مجھے بھی اب یاد آیا نا. سینڈوچ مشین اور یہ والی مشین شوکت بھائی اکٹھے لے کے آئے تھے، اور جوشر مشین بھی لے کے آئے تھے. افطاری میں جی ٹائم رہ گیا ہے، ٹوٹل 6 منٹ رہ گئے ہیں. دسترخوان جی ہمارا دونوں سائڈوں پہ لگا دیا ہے. یہاں پر بھی ہماری فیملی ممبر بیٹھی ہے اور کچھ ہم نے یہاں پہ بچوں کو بٹھایا ہے، فیملی ممبر کو بٹھایا ہے. دعا کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جیسے ہمارا سارن بولے گا پھر ہم جو ہے روزہ کھول لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ
सैयदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, आज के हमारी इफ्तारी, सहरी, रोज़े रखना, इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारी बहुत ही प्यारी आपी हैं शैला आपी, आपकी तरफ से ये इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे रब्बा, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, आज की हमारी इफ्तारी का सवाब, जुमेरात का दिन है, 20 रोज़े की जो इफ्तारी कराई जा रही है, भाई शौकत का 20वां करवाया गया है शैला आपी की तरफ से, और साथ में इफ्तारी भी करवाई गई है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारी आपी की ये इफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा। अल्लाह ताला आपी के वालिद मोहतरम की बख्शिश फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और खुसूसन बिलखसूस आपी ने जो एहतमाम किया है इफ्तारी का, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, भाई शौकत की बख्शिश फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। हजूर पाक की शिफात नसीब फरमा, हजूर पाक की ज़ियारत नसीब फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो बे औलाद है नेक नूरीना औलाद अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यतीम बच्चों की मदद करते हैं, बेसहारों की मदद करते हैं, अपना कीमती असासा मेहनत का पैसा हक हलाल का मुझ तक पहुँचाते हैं, फिर आगे मैं हकदारों तक देकर आता हूँ। अल्लाह पाक एक एक रुपया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। माह रमज़ान में जो राशन चला रहे हैं, गरीबों को रोज़ा रखवा रहे हैं, जो मेरी प्यारी फैमिलियाँ, मेरी प्यारी माएँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सारन जी बोल गया है, दुआ मांग लेते हैं रोज़ा खोलने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तो वाबैका मनतो वलैका तवक्कलतो वला रिज़्क़ का अफ्तरतो। अफ्तारी जी हमारी हो गई है, रोज़ा खोल लेते हैं। मैं भी एक खजूर उठा लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक है, खुल गया रोज़ा। बिस्मिल्लाह। नमाज मगरिब अदा हो चुकी है जी, बारी आ गई है खाना खिलाने की। देग अली भाई ने तैयार कर दी है माशाल्लाह से, आपको मैं दिखा देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी ने ये खाना बनवाया है अपनी बारगाह में, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हमारी प्लेटें भी माशाल्लाह आ गई हैं। अली भाई ने कुकर भी मंगवाया है। शोर बहुत ज़्यादा है, आपने माजरत के साथ महसूस नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा आवाम हो, फैमिलीज़ हो, शोर शराबा होता है। सारी प्लेटें जी हमने भर ली हैं, तकरीबन 30 प्लेटें। बिस्मिल्लाह करके जी शुरू करते हैं। 2 अली हसन 2 शाबाश। 30 प्लेटें भरने का मतलब यही था कि ताकि आसानी से जल्दी जल्दी से सबको दे सकें। अली भाई के ज़िम्मे लगाया है, अली भाई प्लेटें भर रहा है। तरावी जी पढ़ के आया हूँ। टोपी की जगह मेरी यहाँ होती है, जब मैं देखता हूँ फिर मिलती नहीं है, यहाँ से कहीं और चली जाती है। नींद हो गई है पूरी? हाँ जी, बस 9 बजे नींद आ गई थी। आपने तो मुझे बोला था आप तरावियाँ पढ़ के आओ, मैं आपके इंतज़ार में बैठी हूँ, फिर आपको मज़ेदार चाय दूंगी बनाकर। जी मैंने बोला था, आप जब आते हो ना कमरे में दरवाज़ा खुलता है ना, फिर नींद भी मतलब कि खिड़ जाती है। अच्छा उठो, चाय पिलाओ और मुझे पानी पिलाओ, खुश्की भी बहुत आई हुई है। जी मैं और चाय पिलाओ, थकावट बहुत हो गई है। ठीक है, मैं भी पिलाती। पर आपने जहाँ रखी है ना ये जो टोपी बोलते हैं, वो सुबह तो नहीं, आप लेकर पैर फेंक आई। अच्छा चलो मैं इसको और कहीं जगह बना देता हूँ। मतलब कि मैं कहीं और फिर रख दूंगी, सुबह आप फिर मुझसे ले लेना। ठीक है जनाब, इसकी मैं खुद ही सेटिंग कर देता हूँ। इसकी ये जगह बेहतरीन है, यहाँ से कहीं नहीं जाती। ठीक है, ये जगह सही है। हाँ जी ये जगह ठीक, क्योंकि इसका हाथ नहीं जाएगा ना उधर। हाँ जी, यहाँ जो आपने रखा ना तो बिल्कुल सामने, तो जब भी निकलती लेके फिर चली जाती बाहर, क्योंकि फिर पता भी नहीं चलता ना, बंदा बाहर हो काम कर रहा हो तो इसका फिर पता भी नहीं चलता, फिर लेके चली जाएगी। क्योंकि नमाज के टाइम मुझे ज़रूरत होती है, पहननी होती है, फिर ना मिले मुझे टाइम पर, फिर जाने मेरे लिए मसला परेशानी बनती है। हाँ जी, मैं तो वो रखने लगी थी ना सेफ अलमारी में।